Morning class and Assalamu alaikum. I hope you are all fine. I am Aisha Ashraf, your SST teacher, and this is your SST book. Today I am going to read the first unit of this book. So take out your pencils and write date and day on page number 1, unit 1. Write date and day at the top corner of the page. Classwork. Date 1/6/2020 and the day Monday. Okay, you have to read the difficult words at least 3 times with me, and I'm going to read this lesson for you. Unit 1, working safely. In our everyday life, we use things that could be dangerous. Underline dangerous, dangerous, dangerous. If they are not used properly, underline properly, properly, properly. Things as small as vegetable knife or as large as a car could be useful if they are used with care, and dangerous if they are used carelessly. Underline carelessly, carelessly, carelessly. Carelessly means किसी चीज़ को एहतियात से इस्तेमाल ना करना. In order to enjoy life and benefit, underline benefit, 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 benefit. Benefit means फ़ायदा from the different things around us. We must always remember, underline remember, remember, remember. Remember means याद रखना, that if we work carelessly, we can hurt. Underline hurt. Hurt means चोट लगना. Ourselves as well as other people. Here are some safety rules. By following these, you can keep yourselves as well as others safe. Number 1, before crossing the road, always make sure there is no traffic coming your way. If the signal is green and the traffic is running, you should wait until the light is red and the traffic has stopped crossing. There are also pedestrian. Underline pedestrian, 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 pedestrian. Pedestrian means पैदल चलने वाले. Signals at some places, you should follow them too. Number 2, if you are using sharp or heavy tools or using something hot, you should ask an adult for help. Underline adult, adult, adult. Okay, now come at page number 2. You should avoid touching an electric pole, open electric wires or sockets. It could be dangerous for you. Underline dangerous, dangerous, dangerous means आपके लिए खतरनाक. You should look ahead whenever climbing up or coming down the stairs. Looking away may be dangerous. Never leave pins or other sharp objects lying around the room. They may hurt you or others. Medicines, underline medicines. Medicines means दवाइयाँ should not be taken without consulting an adult. Underline consulting, consulting, consulting. Consulting means किसी से राब्ता करना. You should always check the expiry date before taking a medicine. A medicine may become seriously harmful after its expiry date. Harmful means नुकसानदेह. Okay, now we are going to read the difficult words again for you. Dangerous, properly, carelessly, remember, benefit, hurt, rules, pedestrian, adult. Next page. Dangerous, medicines, consulting and harmful. Okay, now I'm going to explain this lesson for you. The name of this unit is working safely. Working means काम करना and safely means किसी भी काम को एहतियात से करना. अब हमें कोई भी काम हो, चाहे वो छोटा हो या बहुत बड़ा हो, हमें उस काम को हमेशा क्या करना चाहिए, एहतियात से करना चाहिए.
In our everyday life, we use things that could be dangerous if they are not properly used. उन्होंने कहा हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे लिए डेंजरस हो सकती हैं अगर हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल ना करें. ठीक है. Things as small as vegetable knife or as large as a car could be useful if they are used with care. उन्होंने कहा एक छोटी सी नाइफ़ भी आपके लिए, हम उसे किचन में बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं कटिंग के लिए, ठीक है, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है. लेकिन अगर वो हम उसको एहतियात से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगी, ख़तरनाक. इसी तरह गाड़ी, एक कार हमारे लिए फ़ायदेमंद है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, लेकिन अगर हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो जिसकी वजह से एग्ज़ाम्पल हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते या हम गाड़ी को बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहे हैं तो हमारे लिए एक्सीडेंट्स होने का ख़तरा है, जिससे हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएंगे और दूसरे को भी. इसलिए किसी भी चीज़ को अगर आपने इस्तेमाल करना है तो हमेशा क्या करना चाहिए, एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए. अगर हम किसी भी चीज़ को एहतियात से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इससे हमें क्या पहुँच सकती है, चोट, ना कि सिर्फ हमें बल्कि दूसरे लोगों को भी. Here are some safety rules. By following these, you can keep yourself as well as others safe. आपको नीचे सेफ्टी रूल्स दिए गए हैं, कुछ असूल दिए गए हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आप अपने आप को भी सेफ़ रख सकते हैं और अपने दूसरे लोगों को भी आप क्या रख सकते हैं, सेफ़. नंबर 1 क्या है कि अगर आप बाहर जाते हैं किसी के साथ भी या आप अकेले बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और आपने रोड क्रॉस करनी है तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अब ये इन्होंने रोड क्रॉस करनी है, अब वो देख रही है कि गाड़ी आ रही है तो उन्हें वो वहाँ खड़ी हुई है लेकिन वो रोड क्रॉस नहीं करी क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो रोड क्रॉस करेंगी तो उनका एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, तो उनको भी नुकसान पहुंच सकता है और प्लस गाड़ी वाले को भी नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर ट्रैफिक सिग्नल क्या हो, रेड है, रेड का मतलब है कि गाड़ियाँ क्या हैं, रुक गई हैं, अब आप आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर सिग्नल ग्रीन है इसका मतलब गाड़ियाँ चल रही हैं. जब गाड़ियाँ चल रही हैं तो आपको अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे वेट करना चाहिए और सिग्नल के रेड होने का वेट करना चाहिए. इफ़ द सिग्नल इज़ ग्रीन एंड द ट्रैफिक इज़ रनिंग, अगर सिग्नल ग्रीन है और ट्रैफिक चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए, वेट, जब तक क्या हो, सिग्नल क्या ना हो जाए रेड और गाड़ियाँ चलना रुक जाएँ तब आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए. There are also pedestrian signals at some places, we should follow them too. उन्होंने कहा पैदल चलने वालों के लिए भी रोड पे उन्होंने सिग्नल्स बनाए हुए हैं जिस पे वो फॉलो करके रोड क्रॉस कर सकते हैं. लेकिन अगर जब भी आप रोड क्रॉस करें ध्यान रखें कि जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो कोई भी गाड़ी आपकी तरफ ना आ रही हो, या तो गाड़ी बहुत दूर हो, या रोड क्या हो, खाली हो, या सिग्नल क्या हो, रेड. नेक्स्ट आ जाते हैं किचन की तरफ. If you are using sharp or heavy tools or using something hot, you should ask an adult for you. अब किचन में आप जाते हैं, कोई गर्म चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, बहुत फॉर एग्ज़ाम्पल मदर कुकिंग कर रही हैं, ठीक है, या वो नाइफ़ का इस्तेमाल कर रही हैं, या वो हैवी टूल्स, ठीक है, जिसमें हम खाना वगैरह बनाते हैं, या बहुत गर्म फॉर एग्ज़ाम्पल पानी उबाल रही हैं तो गर्म बर्तन है, ठीक है, तो आपको हमेशा एहतियात से, अगर आप किचन में गए, ठीक है, आप मदर को भी कहें एहतियात से काम करें, और अगर आप जाते हैं किचन में और आप किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा किसी बड़े की मदद लें. फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी मदर को कह सकते हैं कि मदर प्लीज़ आप मुझे, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एग बनाना है तो आप अपनी मदर को कह सकते हैं. नूडल्स का शौक़ हो रहा है तो आप अपनी मदर को कह सकते हैं. किसी भी, आप हमेशा जो आपके घर में बड़ा है आप उसकी हेल्प लें. नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट 3 पे. यू शुड अवॉइड टचिंग एन इलेक्ट्रिक पोल, ओपन इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट्स. अब आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं अक्सर स्विच, जैसे कि अब देखें वो स्विच पे हाथ लगा रहा है, ऑन ऑफ कर रहा है, या कुछ बच्चे होते हैं कोई भी चीज़ पकड़ के स्विच के अंदर डालना शुरू कर देते हैं, सॉकेट्स के अंदर, ठीक है. अगर वो मेटल का होगा तो जाहिर सी बात है वो एकदम बिजली को कैच करेगी उसको, उनको करंट लग सकता है या उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है. तो कभी भी आप देखें कि कोई बच्चा अगर स्विच के साथ खेल रहा है तो उसे आप दूर ले जाएं, ठीक है, या आपको खुद भी इन सॉकेट्स पे, बिजली की तारों से आपको दूर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये खेलने वाली चीज़ें नहीं हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 4. यू शुड लुक अहेड व्हेन एवर क्लाइंबिंग अप और कमिंग डाउन द स्टेयर्स. अब आप देखते होंगे कि जब आप जा रहे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, स्टेयर्स को पहले उनको अकेले चढ़ने नहीं देना चाहिए, ठीक है, उनके लिए डेंजरस हो सकता है. ये आप भी अगर आप जा रहे हैं स्टेयर्स पे ऊपर जा रहे हैं या स्टेयर्स से नीचे आ रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान से इधर उधर देख के चलना चाहिए, ठीक है. अगर आप जहाँ आप लुकिंग अवे में भी डेंजरस, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऊपर देख के या इधर उधर देख के जा रहे हैं तो आपका स्लिप हो सकते हैं या आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है.
नेवर लीव पिन्स और अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइंग अराउंड द रूम, दे में हर्ट यू और अदर्स। आपने कोई भी चीज़ इस्तेमाल की, आप लोग बच्चे होते हैं कभी टॉयज़ नीचे फेंक देते हैं, ठीक है, अगर वो शार्प होंगे, देखें छोटी सी बच्ची है उसके आगे शार्प टॉयज़ पड़े हुए हैं तो उसके लिए वो डेंजरस हो सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये पिन्स हैं, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए, लेकिन अगर यही मैं इसको ज़मीन में फेंक दूँ, ठीक है, तो कोई भी छोटा बच्चा इसके ऊपर आके अपना पाँव रख सकता है, या कोई भी बड़ा, तो वो उसको हर्ट कर सकता है, ठीक है। तो इससे आपका भी नुकसान है और दूसरों का भी। तो कोई भी अगर आप रूम में कोई भी ऐसी चीज़ देखें जो कि बहुत ज़्यादा शार्प है, या आपको लगता है कि इसको ये आपको अगर आपको हिट करेगी या आपको हर्ट कर सकती है, तो आप उसको उठा के साइड पे रख दें। अब आ जाते हैं लास्ट पे मेडिसिन्स पे। मेडिसिन्स आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत एहतियात से इस्तेमाल करते हैं, उनको बच्चों की पहुंच से हमेशा दूर रखते हैं। आपको कभी भी मेडिसिन बड़ों से पूछे बगैर नहीं लेनी चाहिए, हमेशा आपको बड़ों से पूछ कर मेडिसिन लेनी चाहिए या खानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये खेलने वाली चीज़ नहीं है। यू शुड ऑलवेज चेक द एक्सपायरी डेट, और अगर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं हमेशा उसकी क्या चेक करें, एक्सपायरी डेट, क्योंकि अगर आप एक्सपायरी डेट का मतलब है कि इस चीज़ के बाद इसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपके लिए क्या हो सकता है, ये डेंजरस। अब मेडिसिन में बिकम सीरियसली हार्मफुल आफ्टर इस एक्सपायरी डेट, इस डेट के बाद आपकी जो एक्सपायरी डेट में एक डेट दी गई होती है मेडिसिन में, उस डेट के बाद ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है, डेंजरस। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 मेडिसिन बॉक्सेस लिए हैं जिस तरह, ठीक है। अब मैं इनकी एक्सपायरी डेट आपको पढ़ना सिखाती हूँ। यहाँ पर आपके एंड में लिखा होता है, डेट लिखी होती है, एक होती है MGF, MFG एंड EXP। MFG मीन्स ये कब बनी थी, ये बनी कब थी, 9/2019 यानी 9 मंथ है, और 2019 की है ईयर, यानी 9 मंथ 2019 को ये बनी थी। और सेकंड इसके नीचे लिखा हुआ है EXP, एक्सपायरी मीन्स इसके बाद ये चीज़ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए डेंजरस हो सकती है। क्या डेट लिखी हुई है, 9/2022, यानी अभी 2020 चल रहा है, 2 साल बाद ये मेडिसिन क्या हो जाएगी, एक्सपायर, और किस महीने में होगी, 9 मंथ्स में, ठीक है। इसी तरह मैं अगर सेकंड बॉक्स लेती हूँ, सेकंड बॉक्स मैंने लिया, इसकी एक्सपायरी डेट है जी ये लिखी हुई, ठीक है, इसमें भी MFG लिखा हुआ है, यानी ये जुलाई 2019 को बनी है। उसी के साथ नीचे लिखा होता है EXP मीन्स एक्सपायरी डेट क्या है, जुलाई 2021, अभी यानी 1 साल बाद जुलाई के मंथ में ये मेडिसिन हो जाएगी एक्सपायर। इसके बाद अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस। आप भी मेडिसिन बॉक्सेस घर में लीजिए और उनकी एक्सपायरी डेट भी पढ़िए, और जब वो बनी थी तब भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आजकल जैसा कोरोना वायरस है तो भी आप कोरोना वायरस में हम बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ बार बार अपने सैनिटाइज़र से वॉश करें। क्यों, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम कोरोना से अगर इन्फेक्ट खुदा ना ख्वास्ता होते हैं तो ये हमारे लिए भी नुकसानदेह, और इस हमारी वजह से ये दूसरों को भी लग सकता है, तो इससे हम दोनों का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो अपना भी ध्यान रखें और अपने घर वालों का भी। किसी भी काम को एहतियात से करने को हम क्या कहते हैं, वर्किंग सेफली। रोड क्रॉस करनी है, इसके लिए भी एहतियात से काम करना है। किचन में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपने केयरफुल रहना है। स्विच को आप लोगों ने, स्विच खेलने की चीज़ नहीं है, इसके साथ आपको लोगों को खेलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वायर्स को, ना ही सॉकेट्स को। सीढ़ियों में अगर आप जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान से पकड़ कर जाएं, ठीक है, हैंडल को, या आप किसी की हेल्प लें। कोई भी शार्प चीज़, नाइफ़ है, पिन्स हैं, स्टेपलर की पिन्स हो गई, कुछ भी आपको अगर वो ज़मीन पर गिरी मिली तो आप उसे फ़ौरन उठा लें, क्योंकि इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। मेडिसिन्स कभी भी बगैर पूछे इस्तेमाल ना करें, हमेशा बड़ों की मदद लें, ठीक है, और एक्सपायरी डेट उसकी हमेशा चेक करके इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके लिए क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस, ठीक है। अगर आपको कोई इस लेसन में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे फ़ौरन पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप यू विल लाइक द लेसन एंड ओके, अल्लाह हाफिज़।